اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اگست کے مہینے میں ہم نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست ڈالی تھی، پٹیشن فائل کیا تھا سیکریٹریٹ کی مسجد کے متعلق۔ اس میں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے اندر ایک جو آرڈر پاس ہوا تھا اس آرڈر پر ریویو ریکال کا لبرٹی ہم کو دی تھی، اور اس بنیاد پر ہم نے اس پٹیشن کو رکھا تھا۔ اس کے بعد چیف منسٹر کا اعلان، سیکریٹریٹ کی مساجدیں دوبارہ اسی جگہ تعمیر کرنے کے اعلان پر ہم خاموش تھے، لیکن ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ تلنگانہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ ماضی کی طرح اپنے بیانات کو صرف بیانات کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کے پاس مسجدوں کا کوئی عمل پیرا کرنے والا کام نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ تو میں بحیثیتی مجلس رکن میں نے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے سامنے سپریم کورٹ کا وہ جو ججمنٹ میرے نام سے آیا تھا، میں نے وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے سامنے رکھا۔ تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو لے کر تلنگانہ ہائی کورٹ کے اندر ایک ریٹ فائل کروں، PIL فائل کروں، اور اس پٹیشن، اس آرڈر جو کہ ماضی میں پاس ہوا تھا، اس پر دوبارہ ریکال اور ریویو کے لیے مجھے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا حکم اور ان کی اجازت ملی ہے۔ اس بنیاد پر میں نے ہائی کورٹ کے اندر ایک ریٹ پٹیشن فائل کی ہے۔ ابھی WP نمبر الاٹ نہیں ہوا ہے، لیکن بہت جلد WP نمبر بھی آ جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہیئرنگ کے لیے بھی وہ کیس ٹیبل پر آئے گا، اور میں اپنے فیس بک کے ذریعے اپنے تمام دوست و احباب کو اس بات کی اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ اب یہاں پر جو مدعا ہے دراصل وہ مدعا یہ ہے کہ ہم انفرادی شخصی طور پر اگر ہم قوم و ملت کے مسائل کو اگر ہم اٹھاتے رہیں گے تو میں نہیں سمجھتا انفرادی طور پر، یعنی میرے شاید کچھ دوست اردو کو تھوڑا سا سمجھنے میں جو ہے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، تو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انڈیپینڈنٹلی اگر ہم لڑائی لڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لڑائی ہماری ایک مقصدی طور پر لڑائی نہیں ہوتی ہے۔ ہم اگر متحد ہو کر، یونائٹڈ ہو کر اگر ہم لڑائی لڑتے ہیں تو ہماری لڑائی کے نتائج بھی بڑے پازیٹیو آتے ہیں۔ آج جس طریقے سے ہندوستان کے حالات اور شہر حیدرآباد، تلنگانہ کے حالات اور سیاسی سرگرمیاں جو فرقہ پرست سیاسی جماعتوں کی جو دیکھی جاتی ہے، جیسے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو عزائم ہیں، ان کے جو ارادے ہیں اور ان کا جو مقصد ہے اور ان کی جو کوششیں ہیں اور ان کی جو اس وقت کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے، یہ دیکھ کر میں شہر حیدرآباد کے تمام ان لوگوں سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت ہم کو بکھرے رہنے سے ہماری طاقت ٹوٹے گی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم تمام کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور اس بڑھتی ہوئی آواز کے ساتھ ہم کو اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قوم ملت کے مسائل کوئی سڑکوں پہ حل نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ ملت کے مسائل کوئی آپ روڈ پر بیٹھ کے حل نہیں کیا جا سکتا ہے، یا سڑکوں کے چورستوں پر حل نہیں کیا جاتا ہے، چبوتروں پر حل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اگر ملت اسلامیہ کی حقیقی اگر آپ کو جستجو اگر کرنی ہے تو آپ کو ایوانوں تک جانا ہوگا، اور ایوانوں میں ہی آپ قوم و ملت کے مسائل کو حل کر پائیں گے۔ اور ایوانوں میں جانے کے لیے حیدرآباد کی عوام نے اپنے دلوں میں مجلس اتحاد المسلمین کی محبت کو، بے پناہ محبت کو انہوں نے دلوں میں پالا ہے۔ اسی وجہ سے ہر الیکشنز کے اندر، ہر انتخابات کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کو بھاری اکثریت سے ہر حلقوں میں کامیابی ہوتی ہے۔ اسی کامیابی، دیکھیے ڈیموکریسی میں ہوتا یہ ہے کہ عوام اپنا نمائندہ منتخب کرتی ہے، اور عوام اس بات کو منتخب کرتی ہے کہ ہمارے قائدین، ہماری لیڈرشپ ایوانوں تک جائے اور اپنی آوازوں کو اٹھائے، ہمارے مسائل کو حل کرے۔
उसी बुनियाद पर शहर हैदराबाद बल्कि नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, औरंगाबाद, तेलंगाना के तमाम मुसलमान इस वक्त एक अपनी आवाज को बुलंद करने की जिद्दोजहद कर रहा है और वो आवाज को मुसलमान ताकत बख्श रहा है। अगर मैं यहाँ पर और कुछ कहूँ तो लोग कहेंगे कि फेसबुक के जरिए मैं तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन मैं तकरीर का जो है मौजू पे नहीं जाना चाहता। मैं इस वक्त सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के मुतालिक बात करना चाहता हूँ। यकीनन मैं जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के लिए जब मैं बात किया तो मुझे तो खैर बहुत से अल्फाज किए गए, लेकिन एक अल्फाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो मेरे में हिम्मत, मेरे में ताकत और मेरे में जुनून और जोश भर दिया, वो ये अल्फाज था कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि मस्जिद के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि हम मस्जिद के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम मस्जिद हमारी आबाद होगी दोबारा उसी जगह, हमारी मस्जिदें दोबारा उसी जगह तामीर होगी, और ये चाहे देखिए किसी के बाप के बेटे में, बेटे के बाप में दम नहीं है कि हमारी मस्जिद को वहां पर जो है तामीर होने से रोके, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख गवाह है कि एक ऐसी ही हरकत कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अंदर किया था। उसके बाद कांग्रेस गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई है और एक ऐसी गुमराही की जिंदगी पर कांग्रेस चले गई है, क्योंकि मस्जिद का मामला हो तो उसमें नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। यही अल्फाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के थे, जो मैं समझता हूं जो लोग मस्जिद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं उनको इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को साथ देने का, उनको ताकत बख्शने का, उनके साथ मिलकर मिल्लत इस्लामिया के मसाइल को हल करने की सख्ती से हमको ज़रूरत है। और मैं अपील करता हूं उन तमाम लोगों से कि आप तमाम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इत्तेहाद को मजबूत करिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के अज़ाइम को मजबूत करिए। अब तीसरी बात मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो के जरिए मैंने कुछ बातें कही थी, तो शायद लोगों को बहुत सी तकलीफें हुई थी, लेकिन कल मैंने आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के इंचार्ज दिग्विजय सिंह का मैंने एक पोस्ट देखा है, तो वो राम मंदिर की तामीर के लिए 1,11,101 रुपया डोनेट करते हैं। तो मैं अब यहाँ पर यह सवाल करना चाहता हूँ उन कांग्रेसी मेरे भाइयों से जो कांग्रेस के अंदर है। जब मैंने इससे पहले एक मर्तबा वीडियो के जरिए कुछ सख्त अल्फाज में, शायद मेरी ज़बान सख्त थी, मेरी ज़बान सख्त इसलिए थी क्योंकि मैं मर्दों की जमात में हूँ, मेरी ज़बान सख्त इसलिए थी क्योंकि मेरी जमात का सदर कोई जो है ख़वातीन नहीं है, मेरी जमात का सदर एक मर्द है जो सबका बाप है। तो मैंने कुछ अल्फाज बोले तो बेचारे बहुत तकलीफ में आ गए, बहुत बेचारे जो है रातों में सो नहीं पाए, 4-4 बजे रात को उठ के फेसबुक पे लाइव आके मेरे को गालियां दिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मैं आपके कांग्रेस के एक लीडर ने पुराने शहर के मुसलमानों के मुतालिक एक बयान दिया, उस बयान में मैंने उनको सवालात किया। इनको मेरे सवालात से तकलीफ हुई, उस कांग्रेस के लीडर के बयानात से तकलीफ नहीं हुई। आज आपके तेलंगाना, आपके आंध्र प्रदेश के इंचार्ज कांग्रेस पार्टी के जो माजी में थे दिग्विजय सिंह साहब, वो कांग्रेस की जानिब से, खुद की जानिब से 1,11,101 रुपया राम मंदिर की तामीर के लिए देते हैं। उस पर आप लोगों की जबानों को ताला लग जाता, उस पर आप लोग का बयान नहीं आता। फिर मैं माजी में जब मैं वीडियो में बोला तो आके वीडियो का पेपर बता के बोले हम मम्मी को लेटर लिखे, हम डैडी को लिखे, हम भाई को लिखे, हम भाईजान को लिखे, आपा को लिखे, बहरहाल क्या क्या की बोले, कितों को की लेटर लिखे, बोले वो लेटर कहाँ डाल लिए मेरे को समझ में नहीं आया। अब तक आपके उस पुराने शहर के मुसलमानों के मुतालिक देने वाले बयान पर एक्शन क्या हुआ?
क्या उसको पार्टी से सस्पेंड करे, या आप लोगों की कोई अहमियत नहीं है वहां पर, या आपके लेटरों को नहीं माना जाता, या फिर ऐसे बयानात देने वालों को पसंद किया जाता? अरे छोड़ो भाई, इसीलिए तो बोला था कि कमजरफी की जिंदगी छोड़ो, गुलामी की जिंदगी छोड़ो, आओ मर्दों की जमात में आओ, मर्दों के साथ ठहरो, मर्दानगी फील करो, मर्दानगी को महसूस करो। कब तक जनानों की सदर की जमात में पड़े रहेंगे? आओ मर्दों की जमात में, मर्दों के बाजू बैठो, बात करो, आवाज भी देखो मर्द के जैसी निकलती है बैठे तो। बहुत से लोग मेरे को बोल रहे हैं कि ख्वाजा बिलाल जब से मजलिस में आ गए वीडियोस बनाना बंद कर दिया। देखो, मजलिस की मुखालिफत में जब मैं था, जब माजी में मैं दूसरी सियासी जमात में था, मैं सिर्फ आप लोगों की तरह वीडियो ही सिर्फ बनाता था। देखिए, मुखालिफत करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कौम व मिल्लत के मसाइल के लिए अगर संजीदा है तो आप अमली तौर पर काम करो। जितने लोग आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं करके जो बयानात आते हैं, मैं उन लोगों को बहुत करीब से देखा है। वो लोग बेचारे जो है सिर्फ फेसबुक पे वीडियो बना के डालना ही जानते हैं। कोई एक आदमी उत्तों में से आज तक हाईकोर्ट को रुजू नहीं हुआ, कोई उत्तों में से कोई एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को रुजू नहीं हुआ, कोई उत्तों में से एक आदमी जाकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की कोशिश नहीं की, उत्तों में से कोई एक जाकर होम मिनिस्टर से मुलाकात करने की कोशिश नहीं की। नहीं कर सकते आप तो, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि हम एक वीडियो शूट करें, फेसबुक पे डाल दें, उस पर 200 लाइक्स आ जाए, एक 400 कमेंट्स आ जाए, एक 200 शेयर्स हो जाए, उसी में आपकी पर्सनल जिंदगी खुश हो जाती है। देखिए, यहां पर आपको ये वीडियो बना के टीआरपी हासिल करना ये एक अलग मसला है, वो कर लीजिए। आप अपनी जाती शोहरत के लिए अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन मिल्लत इस्लामिया की अगर भलाई के लिए आपको अपनी इख्तिदार, अपने कायदीन, अपनी ताकत, अपनी आवाज, अपनी क़यादत के साथ मिलकर अगर आप जिद्दोजहद करते हैं तो उसके नतायज आपके सामने आएंगे। देखिए, बातें करने वालों तो बहुत बातें की है, लेकिन जब मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के मुतालिक बात किया, यकीन जानिएगा मेरे दिल में और मेरे यानी जिस्म में एक जोश जैसा पैदा हो गया कि अब तो किसी के बाप को नहीं सुनेंगे, मस्जिद के लिए तो लड़के रहेंगे। लेकिन लड़ने का एक तरीका होता है, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जमहूरियत के अंदर हमको जमहूरियत को इस्तेमाल करना है। हम पहले बातचीत के जरिए मसाइल को हल करेंगे, उसके बाद अदालत के जरिए मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अगर हमारे मसाइल हल नहीं होते, यकीनन माजी की तारीख हमारे सामने है। 1992 6 दिसंबर की बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हजारों लोगों ने, हजारों मुसलमानों ने अपनी जानों को पेश किया। अरे वो तो अयोध्या का मसला था, उस पर हैदराबाद के कई नौजवानों ने, मेरे सगे तायरे भाई ने अपने पैर पर 2 गोलियां खाई थी। तो आपको मैं याद दिला दूं, हम लोग खामोश बैठने वाले लोग नहीं है, और अब तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है, बिल्कुल भी खामोश बैठने वाले लोग नहीं है। हम खामोशी से बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। ये लोग अगर झूठे दिलासे देते रहेंगे, गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरी बात को। मैं आखिरी में बस इतना ही कहता हूं, किसी के बाप में और बाप के बेटे में इतनी हिम्मत नहीं है हमारी मस्जिद को दोबारा वहां पर तामीर होने से रोके, लेकिन हम उसको एक लीगल वे से लड़ेंगे, जज्बाती तरीके से नहीं लड़ेंगे, कानूनी तौर पर लड़ेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करके लड़ेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ताकत को बढ़ाते हुए लड़ेंगे और बताएंगे, वक्त की हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि हमारी आवाज को सुनना चाहिए, हमारे इक़दाम को करना चाहिए।